Basically, this concept we had conceived in 2017 when I was the DGP, Police Reform, Madhya Pradesh. Yes, sir. And it was submitted to the Government of India. It was a highly technology-driven initiative for which 12 Smart India Hackathon problem statement were issued and solution were designed, right? Yes, sir. And in 2019, this concept was accepted by the Government of India as a national police mission. And since 2019, I am heading two national police mission. One of them is Crime Free Bharat, right? Yes, sir. In September, 30th September 2020, I had submitted a draft law to provide the legal framework within which the crime-free and corruption-free Bharat is doable, right? And it was basically giving a right to the privacy also. So it is more like a fundamental right to everyone that there will be absolute privacy, and this fundamental right will cease to exist the moment you commit a crime. So right to privacy is not available to the criminal. Okay. That was the concept, and I popularly call this law as a digital Chitragupt, though its detailed name was National Authority for Scientific and Technical Assistance in Investigation and Detection of Crime under Entry 65C Schedule 7 List 1. And we deliberately gave a very big name because I know my brother officers, because they will be throwing it into the dustbin, saying that policing is a state subject. Yes. So we basically conveyed very thoroughly, no, it is the constitutional responsibility of the Government of India under List 1, entry number 65C. So that was the basically idea of giving such a big name, because I know how we bureaucrat process things on file, right? And, Yes, sir. and there's nobody to plead the case. So you will receive a letter that it is considered and filed, right? Yes, yes. So that was the reason. And in 2021, I realized that government is not going to create crime-free और corruption-free भारत, because ये इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है. और सभी सरकारें और सभी पार्टियां अपराधियों को ही टिकट दे रही हैं. आई डोंट नो मिस्टर विजय, डू यू नो दैट 4 PIL वेयर सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट, और उसका मजनून ये था कि इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, तो देश के कानून के निर्माता वो अनपढ़, गवार और अपराधी क्यों? आई मीन it was the, if we can frame in these words. And fortunately Supreme Court agreed in toto and said कि भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और हम भी पार्लियामेंट को प्रेयर करते हैं कि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान डाल दे. लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी जस्ट भिन्न है, राइट? जो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि क्रिमिनल्स आर बीइंग प्रेफर्ड ओवर एनी गुड सिटीजन. अभी आप देखिए पार्लियामेंट में, डू यू नो हाउ मेनी MPs आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ओन एफिडेविट इन इलेक्शन कमीशन विच वाज सबमिटेड बाय देम at the time of nomination, their own nomination? Around 40 to 60%. What I to be or precise, more than that. to be precise, it is 42%. We are not very sure because this is the data from their own affidavit. If they have suppressed, if they have suppressed some information, we are not very sure.
But if we rely on their own affidavit, then 42% of the member of parliament, they are with the criminal record, and 29% of them, they are having very, very serious, heinous offenses to their credit, like murder, dacoity, loot, kidnapping, and rape, etc. 29%. एंड इफ भी हमको यदि ये लगे कि नहीं नहीं साहब ये तो सिर्फ FIR दर्ज हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है. इनमें इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट जो है ना कोर्ट में सबमिट हो गई है, और कोर्ट ने उनमें चार्ज फ्रेम कर दिए हैं प्रमा फेसी एविडेंस पाकर, और बहुत सारे केसेस में तो इसमें सजा भी हो गई है. ये लोग जो है अपील की ऑक्सीजन पे बैठे हुए हैं, बिकॉज द मोमेंट यू डू द अपील इट बिकम द सब जुडिस, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है. अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी मतलब लूप होल है. हाँ, ये इसी लूप होल का यूज करते हैं. तो अच्छा अच्छा अच्छा. आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि इनके लिए MLA MPs और मंत्रियों इन सब के लिए फास्ट कोर्ट जो है ना होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ. मैंने तो अभी किसी को सजा होते सुनी नहीं है. नहीं आज आप सुने होंगे सर, मुख्तार अंसारी हाँ हाँ. आफ्टर 31 years of the trial finally he is being punished by the तो इसको honorable court. इसको जो है आप फास्ट after ट्रैक, 31 years. आप इसको फास्ट ट्रैक कहेंगे क्या? वो तो बुढ़ा हो गया, मतलब वो तो मरने की स्थिति में है और उसको अभी सजा हो रही है, और पूरे जीवन तो उन्होंने पुलिस वालों को ही जेल में रखा है. यही मुख्तार अंसारी था ना सर, जो कोतवाली में थाना लगा दिया था, ताला लगा दिया था. हाँ 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 हाँ. ड्यूरिंग द मुलायम सिंह यादव. इसके पास से एक 47 AK-47 बरामद हुई थी, और जिस अधिकारी ने वो बरामद की थी और केस लगाया था, उस अधिकारी को इसने बर्खास्त करा दिया था. हाँ हाँ हाँ. और रादर ही फोर्स हिम टू रिटायर और समथिंग लाइक दैट. अभी जो है वेरी रिसेंटली ही हैज कम टू द सर्विस अगेन. तो आप ये देखो कि केवल चोरी ही नहीं है, सीना चोरी भी पूरी है. हाँ हाँ हाँ. और डॉक्टर पांडे, आई वुड लाइक टू रियली आस्क योर इम्प्रेशन. हम विद्वान लोगों को क्या हो गया है जो अपने पब्लिक को यही नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए हुए थे. ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. और कई चीजें जो हमारे दिमाग में है, और मैं एक्चुअली मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ सर जी. और मतलब MBA MPhil PhD वगैरह मैंने कर रखा है जी. तो मैं यहाँ पे जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है उसमें मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ. जी जी जी. तो मैं यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ तो मैं काम करता हूँ सर. जैसे मैं इन लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ जी. जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं और ये फ्री बीज जो चल रही है. इवन आपको जैसे मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एफिलिएशन है बीजेपी के साथ, थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि बाकी पार्टियों से थोड़ी अच्छी है, लेकिन ये चीज बीजेपी के साथ भी लागू होती है क्या? ये लोग इस टाइप के कानून जो आपने बताया कि जैसे कि कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, तो क्या ये जो नरेंद्र मोदी जी मानेंगे इस बात को? आई डाउट. मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी गवर्नमेंट. मैं ये कह रहा हूँ कि जिन राजनेताओं ने समझौता के तहत आज़ादी ली और गुलामों के सब नियम कानून और वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी, मैं पांडे जी आपसे पूछता हूं कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या देशवासियों पर वही कानून जो अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करना है, अपमानित करना है, उनमें हीन भावना लाना है और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देना है, क्या ऐसे ही कानून आप अपने देशवासियों पर थोपते? दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर विजय पांडे. नहीं सर. और मैं सर, अगर आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन उसमें एक सत्यमेव जयते सर, अगर आपको ध्यान होगा जी, जो आता था आमिर खान ने दिखाया था जी, तो उसमें किसी पुलिस सर्विस से भी उसने रिलेटेड कुछ बात हो रही थी. हाँ, आई डू रिमेम्बर, हमने देखा है वो हमने देखा हुआ है. हाँ,
तो उसमें जैसे ब्रिटिशर्स ने जो जैसे पुलिस फोर्स जो बनाई, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो हमारे जो टॉप ऑफिसर्स रहे और यहाँ के लोग नीचे रहे, तो इसलिए उसने डिफरेंट एंट्री पॉइंट बनाए, जैसे कि एक आईपीएस बनाया। उसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है कि यानी जो स्टेट सर्विस के थ्रू है। तीसरा जो है there दरोगा के रूप there में are जो five entries in the police force: constable, हाँ हाँ then हाँ sub inspector, हाँ then हाँ हाँ deputy SP हाँ 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 एंड आईपीएस, और कुछ केसेस में एएसआई लेवल पर भी एंट्री है, बट दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड, दैट इज़ जनरली ए हाँ प्रमोशन हाँ पोस्ट। कुछ टेक्निकल हाँ उसमें हाँ हेड कांस्टेबल और एएसआई लेवल पर भी डायरेक्ट एंट्री है, बट दैट इज़ मोर हाँ ऑफ ए वेरिएशन। तो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, then deputy SP and IPS. These are the four level of entry in police force. हाँ। लेकिन वही सर जो ब्रिटिश में है वहां पे एक ही एंट्री क्यों है, आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में। देखो, मेरा सोचना है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि रमा हुआ व्यक्ति पहुंचेगा, ये बात हो हाँ सकती है, लेकिन विद द हायर क्वालिफिकेशन यदि हायर उसके जो है ना आए, तो मुझे उसमें बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ज़्यादा समस्या है कि हमारे कंडक्ट रूल क्या हैं, ज़्यादा समस्या ये है कि हमने नियम कानून क्या बना के रखे हैं, और हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसीबिलिटी और सेंसिटिविटी कितनी है। आज सिस्टम में हाँ सेंसिटिविटी जीरो है। आपका हाँ सिर हाँ फटा हुआ है, आप थाने पहुंच जाइए, आप सिर पटक लेंगे, आपका हाँ ऑफेंस रजिस्टर नहीं होगा। और हाँ वहीं पर एक हाँ बाहुबली पहुंचेगा और एक नेता पहुंच जाएगा या पैसे देने वाला पहुंच जाएगा, तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाएगा, और दो हाँ झूठे हाँ बयान जो है ना काट के आपको जेल भेज दिया जाएगा। आपको अपनी जमानत हाँ कराना पड़ेगी, और आपके खीसे में यदि पैसे नहीं हैं तो आप बेगुनाह होते हुए भी जेल में सड़ेंगे। और जिन लोगों को जेल के अंदर रहना चाहिए वो सीना तान के जेल के बाहर घूम रहे हैं। मतलब ये बड़ी विडम्बना हाँ। नहीं है? और इसका मेन प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है सर कि यानी जो पहले थॉट हम लोगों के दिमाग में नहीं आता था, लेकिन जैसे पंडित नेहरू एक तरह से एजेंट थे मुझे लगता है कि गौरव जो ब्रिटिशर्स के। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ हाँ क्योंकि 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 इन लोगों को सर वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, जी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी भी एक डंडा भी नहीं लगा है। अगर मान लीजिए अगर उनके एजेंट नहीं रहते तो कहीं ना कहीं दो देखो चार डंडा तो खा देखो ही लिए होते। देखो, दे वेयर कल्टीवेटेड, और उनको हाँ स्टूडेंट लाइफ से जिन्ना और नेहरू दोनों को कल्टीवेट किया गया। एडमिना हाँ माउंटबेटन वाज नॉट जो है ना वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, शी वाज ए सीक्रेट एजेंट, हाँ और इट शी वाज ब्रॉट इन फॉर दिस गेम प्लान ओनली। अब आप ये अच्छा अच्छा अब आप ये बताइए कि आपने जो बहुत बड़ी बात कही है कि ये लोग जो है किताबों की किताबों में पत्र लिखते थे, इनके पूछा जाता था कि हाँ आप लंच में क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, अंग्रेजी समाचार हाँ जो है ना सब इनको पढ़ने के लिए दिए जाता थे। और जैसा आपने बिल्कुल हाँ सही कहा कि कभी इनको एक डंडा नहीं लगा है, तो बाकी लोगों के तो इन्होंने सिर फोड़ के आत्म जो है ना हत्याएं कर दी, राइट? हाँ तो हाँ हाँ तो तो जो है इन्होंने तो छोड़ा नहीं लोगों को, राइट? तो हाँ हाँ तो नहीं ये आपका डाउट जो है 200% बेबुनियाद नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इन्होंने तो वो भी किया ना, सुभाष चंद्र बोस को जो है ना इन्होंने लिख के दे दिया कि 50 वर्ष तक जो है ना जिंदा या मुर्दा पाएंगे तो हम उनको आपको हैंड ओवर करेंगे। एंड हाँ आई डू नॉट हाँ नो वेदर यू नो इट और नॉट, जब जो है सुभाष चंद्र बोस जो है रसिया पहुंच गए, तो हाँ हाँ तो इन्होंने चिट्ठी लिखी लंदन को कि भाई अच्छा रसिया रसिया हमारे कैंप में है, और रसिया ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को शरण दिया है, ऐसी जानकारी मिली है, तो आप रसिया पे दबाव बनाइए कि वो ऐसा ना करे। हाँ 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 असम में एक वह भाषण में इन्होंने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस की जो सेना है उससे गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। ये इनकी चिट्ठियों के हाँ कलेक्शन में है, मैं कोई अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं कर रहा हूँ।
इट इज़ द हाँ वर्क विच हैज़ बीन कलेक्टेड एज ए नेहरूज लेटर, नेहरूज वो उस तरीके की जो छपे हुए हैं जो श्रीमती गांधी ने छपवाए थे, ये उनके कलेक्शन हाँ के रेफरेंस बता रहा हूँ मैं। तो हाँ अब सवाल ये उठता है कि हम समस्या का हिस्सा बना रहेंगे या समाधान कर पाएंगे। तो हाँ। डॉक्टर विजय पांडे, आई हैव क्रिएटेड सॉल्यूशन फॉर इट। हम्म, तो वो सॉल्यूशन में सभी लोगों की सहभागिता होना चाहिए। अब आप, मैं यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सुनना चाहूँगा कि मिस्टर चतुर्वेदी ने आपको क्या ब्रीफ किया। ये बताया कि यानी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और जहाँ पे जैसे करप्शन वगैरह की जो बात है, मुझे मेनली सर अभी जो इश्यूज जो मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उन्होंने तो ब्रीफ में मुझे बताया कि यानी आपने एक अच्छा इनिशिएटिव करप्शन फ्री के लिए बात कर रहे हैं, और आपकी बातों से काफी प्रभावित थे वो। हम्म। तो यानी उनका मैं यानी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस लायक समझा कि मुझे आपके साथ जोड़ने के लिए, और आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए भी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अच्छा कॉज के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो आपके पास क्या कमी है, ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं उतने बड़े पद पे, आप तो आराम से बढ़िया माल बोरो पीजिए, वाइन पीजिए और आराम से रिलैक्स कीजिए। जैसा कि हम कर अधिकांश सकते जैसे हैं। कि अधिकांश साथी कर रहे हैं क्या? लेकिन लेकिन आपने जैसे आपने सोचा कि नहीं, हमने इतना करने के बावजूद भी हमें यानी जो जिस देश में हम रहे उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो ये थॉट आया, तो मतलब ऐसे थॉट को मैं जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा जिस तरीके से भी हो सके। देखिए, इसमें और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 21 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला जी ऑब्जेक्टिव जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, तो चौथे पांचवें पे खिसक गया है, राइट। जी जी इसका जी। सबसे पहला लेवल है, वो है अंग्रेजों के गुलामों के बनाए हुए नियम कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन। दैट इज़ द नंबर वन। नंबर टू इसका जो है कि जो अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था जो बनाई थी, जुडिशियल एंड जी प्रशासनिक दोनों ही, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाना, और संवेदनशील भी बनाना है टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक, राइट। एंड यदि ये व्यवस्था विलंब से निर्णय लेती है या गलत निर्णय लेती है, तो इसे क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी पॉकेट से। ये इसका ये हो गया पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री जो है, दैट इज़ ऑन एजुकेशन। तो जो एजुकेशन लॉर्ड मैकाले ने हमारे 18 जो है विधाओं में एक्सीलेंस प्राप्त जो है, जो गुरुकुल सिस्टम था, जिसके बारे में हाँ 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने पेश किया था, जी जिसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई हैव ट्रेवल्ड, ही वॉज हियर फॉर 3 years, ही ट्रेवल्ड एवरी गुरुकुल एवरीवेयर ही हैड बीन, and he have submitted a very detailed account of all gurukuls, very detailed account। और उसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड सिंगल पुअर मैन और बैगर। और एक ये सोचने का विषय है कि 2 फरवरी 1835 बहुत दूर नहीं है, 200 साल भी नहीं हुए अभी, जिसमें से 75 साल तो हमारे ही शासनकाल के हो गए, राइट। तो हाँ इन 125 सालों में क्या लुटाई की कि हमारे भारतवासी इतने गरीब हो गए कि लाखों लोग तो हाँ भुखमरी से मर गए। वी हैव फेस्ड फ्यू फेमिनिन्स, भुखमरी से लोग मरे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ इतनी समृद्धि हो कि लॉर्ड मैकाले को एक जो है ना गरीब व्यक्ति ना मिला हो, उस देश में इन्होंने हाँ क्या लूटा और कैसे लूटा। क्योंकि इन्होंने हर तरीके से लूटा। इन्होंने आपका जो है, जैसे जो साड़ियाँ थीं जो कि एक अंगूठी से निकल जाती थी, वो ख़त्म कर दिया। आपके जो यहाँ का जो चीज़ है उसको ख़त्म करके वहाँ से कारखानों से जो ना चीज़ें हुई, रॉ मटेरियल यहाँ से भेजा, कारखाने से चीज़ें आई, यहाँ आपको नील हाँ वील जैसी चीज़ें बनाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए तो कैश क्रॉप वाला हाँ सिस्टम कर दिया। तो उन हाँ सब को हाँ एक्सप्लॉइटेशन, लगान और सब चीज़ों का जो है ना, जो मेजर रोल जो रहा
कि लोग बाग भुखमरी में मर गए। तो हमें जो है ये एजुकेशन सिस्टम को नाउ वी हैव टू बी मेक इट वेरी वेरी डिफरेंट, जिसमें बाबू पैदा करने की बजाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम, जहां आपको शिक्षा जो है प्रायोगिक जीवन की मिले, जिससे आप एक अच्छा जीवन जी पाए। जी जी अभी आपकी शिक्षा का और इससे कोई लेना देना नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? सर 100% सर, मैं इतने सालों से एजुकेशन फील्ड में हूं और मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसमें बहुत मेजर फ्लॉज है, क्योंकि इसका जो जो इन लोगों ने किया ना, व्यवसायीकरण कर दिया जो एजुकेशन का। तो एजुकेशन तो किसी को फायदा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि नहीं, कुछ और फायदा उसमें हो रहा भी है। वो हाँ फर्जीफिकेशन उसमें इनबिल्ट है कि आपके जो है ना, हाँ जैसे डॉक्टरों का जो है ना वो हो रहा है, तो डॉक्टर फर्जी दिखाए जा रहे हैं। मतलब हाँ रिकॉग्निशन लेना अपने आप में वो है, हम टैलेंट पैदा नहीं कर रहे हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही चीज़ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। उनको लेना देना भी नहीं है आपके पढ़ाई लिखाई से। जो जो यूनिवर्सिटी भी है ना, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको लेना देना नहीं एजुकेशन से। उनको बस एक ऐसा माहौल दिखाना है जिससे कि मतलब लोगों से पैसा खींच सके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 200% सही बात कह रहे हैं। तो इसमें जो है 5 सर्टेनिटी के साथ तो क्राइम फ्री भारत है, जो कह रहा है हाँ कि हाँ बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और गलत एफआईआर दर्ज कराना वाला भी जेल में सड़ेगा। हाँ मतलब अकेला जो है एफआईआर दर्ज जो है ना करना नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी को कोई भी झुंझुना दे देते हैं तो हाँ एक चीज़ हाँ आप मानेंगे कि वो उसका दुरुपयोग करने में उसे ज़्यादा रुचि है। तो हाँ जिन हाँ जिन हाँ नियम कानूनों में ऐसे जो ना कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं, वहाँ भर भर के झूठी रिपोर्ट हो रही, चाहे डॉरी की हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, चाहे एससी एसटी हो, सब हाँ जगह जो है दुरुपयोग हो रहा है, और खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है, और आदमी त्रस्त है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भाई झूठी रिपोर्ट करोगे तो जेल में सड़ोगे। हाँ तो हाँ आपकी रिपोर्ट बिना थाने जाए होगी, और आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगी, और उसमें एन नंबर ऑफ द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर रहेंगे। तो जी वकील से लेके हर कोई जो है उसमें रहेगा, लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहेगा। जो व्यक्ति ऐप से हाँ जाके आपकी एफआईआर लेगा, ही विल बिकम विटनेस टू योर एफआईआर। वो इट जी ही विल बिकम विटनेस टू योर बॉडी आल्सो। तो आपकी इंजरीज हैं वो उनको उसका विटनेस बन जाएगा, और वो अपने ही ऐप से उसमें एक डिवाइस लगा के मेजरमेंट लेने वाले जो है ना डेप्थ तक की जो है ना इंजरीज को वो कैप्चर कर पाएगा। तो वो हाँ एफआईआर के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने में भी पुलिस की मदद करेगा, विच में बी अदरवाइज लॉस्ट। और फिर जो है इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद करेगा जो आज के पुलिस के रडार में ही नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना? जी 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 इवन जो चीज़ें पुलिस के रडार में नहीं हैं वो भी कलेक्ट हो जाएंगी। तो दिस विल बी ए वन ऑफ द वेरी बिग थिंग। जी जी। लेकिन इसमें सर एक चीज और भी है, हाँ जैसे हम जो जितना भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हाँ हाँ सोच रहे हैं, तो ये क्या अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट के थ्रू हाँ अगर हाँ। क्या गवर्नमेंट इस चीज को मानेगी? को देखो, अच्छा, एक मिनट पहले तो आप मुझे बताएं मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, ओके। अब मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोकपाल बिल आया था, क्या उसकी सोच ही बच्चों वाली थी कि नहीं थी? आप ये बताइए, एक ऐसा बिल जो कि 2011 में पैदा हो गया, 3 साल यूपीए ने उसमें कुछ नहीं किया, पहले टेनवर में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे कचरे में डाल के रखा। मार्च 2019 में पहला लोकपाल पदस्थ किया गया। मेरा अनुमान है आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे। आपको अपने लोकपाल का नाम मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और वो 3 साल रहने के बाद जो है, उनका नाम आज तक जो है हम और आप जैसे लोगों को नहीं मालूम है, तो आम जनता को क्या मालूम होगा, राइट? उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब उनकी जगह पे एक जो सदस्य थे, वो प्रभारी लोकपाल हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक बिल जिसका कि या एक एक्ट जिसकी किसी भी चीज पे आपका नियंत्रण नहीं है, वो आप एक कैसे बच्चों वाली बातें करते हैं कि वो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा? जिस दे- जिस जि, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना। जिस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी इन लोगों के जो है ना, ढेर सारा करोड़ों में जो है ना, लाख करोड़ में जो है पैसा राइट ऑफ कर दिया जाता है, जहां पर कि जहां पे कि एनोनिमस पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन करोड़ों में लिया जा रहा है, ये सब क्या लोकपाल के विषय नहीं है? आप ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन में जब आपने जनधन में सब खाते खोल दिए थे और क्राइम फ्री, मैथिली शरण गुप्त ने 2016 में एक पत्र लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी को एज ए सिटिंग डीजी, जिसमें मैंने उनको 18 पॉइंट्स लिखे थे कि ये करेंगे तो आपका जो है डीमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। उस 18 के 4 मुख्य पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। उसमें था कि ये एक्सचेंज बिजनेस बंद करिए, और आपने ऑलरेडी जनधन योजना में 90-95% जो है ना अकाउंट खोल दिए हैं। घर घर जो है सरकारी व्यक्ति को भेजिए और उनके अकाउंट खोल दीजिए यदि किसी के अकाउंट नहीं खुलेगा। उसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मास में प्रिंट किए जाएं और हर व्यक्ति को, हर जो है ना खाता धारक को उसके घर पहुंचा दिए जाए। और अधिकांश जगहों पर जो है पीओएस मशीन लगा दी जाए, और एटीएम और मोबाइल एटीएम का उपयोग करते हुए, और जो है बिना जो है ना इनकन्वीनियंस के सब कुछ ठीक हो गया होता, और पूरा अकाउंट जो है अकाउंट में पैसा जाता। अब आप ये बताइए, जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा वापस आया है, तो हमारे बैंक्स ने तो काउंटरफेट करेंसी भी एक्सेप्ट की है। तो आपने जो फायदे थे वो कहाँ चले गए? नंबर वन। नंबर टू, अभी जो है 2000 के जो नोट बंद किए हैं, इसमें तो घपलेबाजी की पराकाष्ठा कर दी। इसमें कहा गया कि आप नोट लेके जाइए, बिना स्लिप के वहां से पैसे वापस लेके आ जाइए। आपसे जो है कोई रिक्विजिशन स्लिप भी नहीं भराई जा रही। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि पैसा हम लोगों के पास में है, आप जाओ खर्च से बदल के ले आओ। अदरवाइज यदि यही पैसा खाते में जमा होता, और जो जमा करने वाला है उसका नाम, आइडेंटिटी का जो है ना डॉक्यूमेंट स्कैन करके उस ट्रांजेक्शन के साथ अटैच कर देते, तो किसी को कोई असुविधा भी नहीं होती। और बड़ी आसानी से जब हम चाहते तब गड़बड़ वाली जगह, क्योंकि ये तो सब वही पैसा है जो फ्रोजन पड़ा हुआ था, और जो जो निश्चित तौर पर काला धन है और घूस का धन भी। तो हमारी सोच ही ठीक नहीं है ना। तो जो ये 21 लक्ष्य हैं, इसमें बहुत आगे चल के और भी अच्छे हैं कि कैसे जो है ना ब्यूरोक्रेसी सुधरेगी, एसीआर नहीं लिखी जाएंगी, आपका टैक्स, आप डू यू नो द इंडिया इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री कंट्री, एंड इट विल बी हैविंग 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू फॉर द डेवलपमेंट। 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू। जब हमारे पास, इसके लिए मॉडल बनाए गए हैं, 2 मॉडल हैं इसके, कभी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वी विल हैव 20 टाइम्स और मोर रेवेन्यू विद द गवर्नमेंट। हेंस वी आर ऑफ द ओपिनियन कि 2005 ऑनवर्ड देयर विल बी नो टैक्सेशन इन दिस कंट्री। ना जीएसटी होगा, ना इनकम टैक्स, नो डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और पेपर करेंसी लुप्त कर दी जाएगी। देयर विल बी ओनली डिजिटल करेंसी। और क्राइम फ्री भारत के साथ साथ जो है साइबर क्राइम फ्री भारत होगा।
किसी की औकात नहीं है कि वो अपराध कर दे। अभी जो अपराध हो रहे हैं ये सिर्फ ढीली पीली व्यवस्था है। मैं आपको ये बताऊं, आप जो भी ये कम्युनिकेशन करते हैं या जो साइबर क्राइम करते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू द साइबर स्पेस विदाउट टेकिंग सम सर्विसेज फ्रॉम सम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। एम आई राइट? आप क्या साइबर स्पेस, करेक्ट। तो साइबर स्पेस जिससे आप परचेज कर रहे हो, जो सर्विसेज आप हायर कर रहे हो, he is having certain details about your identity, your bank transaction and everything, right? That is, there is a second aspect that is called the volatile data. तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब एड्रेसेस जो है इंक्लूडिंग द लोकेशनल डिटेल्स, दे आर द योर volatile डाटा, जो कि बहुत कम स्पेस है, हम उसको जो है बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। then your identity is 100% available with us, right? अब जब आपकी लोकेशनल आइडेंटिटी भी हमारे पास है, तो ऐसी लोकेशन से यदि कॉल मास्क किया जा रहा है या इमिनेट हो रहा है, जो एनामिक है या नॉन हॉस्टिलिटी के लोग हैं, तो ऐसी जगह पे वी कैन हैव ए फिल्टर कि यदि वो हमारे साइबर स्पेस में घुसना चाहते हैं तो उन्हें एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत एडिशनल गारंटी लेना पड़ेगी, राइट? नाउ योर आइडेंटिटी डब्ल्यू ट्रिपली कवर के साथ हमारे साथ हो गई, सिर्फ इस क्वेश्चन ऑफ डिजाइनिंग एंड कंसिडरिंग द प्रोटोकॉल, राइट? नाउ द सेकंड एस्पेक्ट, इसी जो हम जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, इसमें ही एक छोटा सा जो है बटन लगा के एक हल्का सा जो है ना ऐप इसके अंदर रहेगा कि एज एंड व्हेन यू फील कि दिस number is suspicious, this message is suspicious, you have to just click that button. Then आपके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द बैकग्राउंड विल स्टार्ट वर्किंग। यदि आप एक साइबर क्रिमिनल हैं और मुझसे पूछेंगे कि ओटीपी क्या है, तो हमारी एआई जो है एक फर्जी ओटीपी जनरेट करके उसे हमारे स्क्रीन पर फ्लैश करने लगेगी। अब जब जो है आप स्क्रीन पे वो फर्जी ओटीपी पढ़ेंगे और उस ओटीपी को लेके जो साइबर क्रिमिनल डालेगा, और जब उसका काम नहीं बनेगा तो वो दोबारा फोन लगा के आपको शुद्ध महावैन की गालियां देगा। देगा कि नहीं देगा? शुद्ध महावैन की गालियां देगा। एंड दैट इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। अब आपके पास उसकी आइडेंटिटी है, और कोई भी साइबर क्राइम जो है ना, एक साइबर क्राइम एक मछली को पकड़ने जैसा है, राइट? तो मछली को पकड़ने के लिए हम एक लंबे एरिया में जाल फेंकते हैं, तब कोई कुछ मछली पकड़ में आती है। तो जो साइबर क्रिमिनल है वो मैसेज भेजेगा, लिंक भेजेगा, ऐसे ही सब 25 चीजें करेगा, और ये सभी अटेम्प्टेड क्राइम है कि नहीं है? तो यदि आपने साइबर क्राइम के इंटेंट से मैसेज भेजा तो आपने क्राइम कमिट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस और नो? कर दिया आप, राइट? यदि आपने साइबर इंटेंट से कॉल किया तो आपने साइबर क्राइम कर दिया कि नहीं कर दिया? ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, आप लुटे पिटे नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट, क्राइम का अटेम्प्ट हो गया। नाउ यदि बैकएंड में जस्ट जो है, जैसा हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, तो दिस कंटेंट कैन इमीडिएटली भी उसकी एफआईआर हो गई, आपके एविडेंस ऑलरेडी कैप्चर्ड हैं, और आपको पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी व्यक्तियों को सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत वी आर हैविंग पावर टू अरेस्ट, राइट? तो हम पब्लिक से ही उसे अरेस्ट करा लेंगे। अब बताओ, आपने 1000 जगह मैसेज भेजा, यदि 6 महीने की भी सजा है तो 500 साल की सजा हो गई कि नहीं हो गई? विथ सर्टेनिटी। और हमारे सिस्टम में तो हर किसी को धन बांटने की हमने व्यवस्था की है। तो जो फरियादी रिपोर्ट करेगा उसको धन मिलेगा, जो गवाही देगा उसको धन मिलेगा, जो फॉरेंसिक का काम करेगा उसको धन मिलेगा, कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करना तो उसको धन मिलेगा, कोई जो है वकील होगा तो दोनों वकील को, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों लॉयर को फीस सिस्टम ही देगा। आगे चल के जो है अपराधी को डिफेंस लॉयर को भी फीस नहीं देना होगी।
सब फीस हम देंगे, पुलिस को भी जो है ना पैसा मिलेगा, जज को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि हर किसी की जो है ना फिर बेस सैलरी मिलेगी केवल, और उसको ये सब चीजों में रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगी, और सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी मेकिंग देयर सैलरी 4 टाइम 5 टाइम और मे बी 10 टाइम्स। बात समझ रहे हो ना? तो ये धन की वर्षा हो रही है। नहीं नहीं, ये जो धन की वर्षा है, इसमें एक अमेंडमेंट हो जाएगा कि जो मजिस्ट्रेट है वो आपके फाइनेंशियल फाइन का कंपोनेंट डिसाइड नहीं कर पाएगा, तो वो दैट विल बी ए कैलकुलेटेड कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि हमें भर भर के पैसे बांटना है, और जो हम पैसा बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। अब मुझे बताओ कैसे कितनी धन की वर्षा होगी, और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो मैंने एक मॉड्यूल बताया आपको। इतनी धन की वर्षा होगी कि 10 गुना रेवेन्यू अकेला क्राइम फ्री मॉडल से आ जाएगा। और एक और पावर जो है ना मजिस्ट्रेट का विड्रॉ हो जाएगा। मजिस्ट्रेट shall not have the power to give the any punishment concurrently। तो यदि आपने 6 अलग अलग धाराएं लगी हैं और 6 धाराओं में अलग अलग सजा मिली है, तो सम टोटल जो है ना उसको पनिशमेंट होगा। वो ऐसा नहीं कि सब सजाओं को कॉन्करेंटली चला दिया, 2 साल में आपकी सब सजाएं खत्म। तो अभी ये बहुत घपले हो रहे हैं, ये घपले सब बंद हो जाएंगे। तो इतना पावरफुल सिस्टम होगा, बताओ कोई साइबर क्राइम कर पाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं चैलेंज देता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर दे। मतलब बड़े से बड़े क्रिमिनल की औकात नहीं है, और हम तो कह रहे हैं कि देश तो छोड़िए, विदेश में बैठे हुए की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फिल्टर जैसे ही ऐसी एनेमिक कंट्री का या ऐसी कंट्री का हो जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरा ऑलरेडी ट्रीटी नहीं है, हम उसको अपने स्पेस में घुसने ही नहीं देंगे। he has to give the additional protocol to enter into our space, जिसमें गारंटी रहेगी कि यदि हमारा ये बंदा जो है कोई क्राइम करेगा तो सरकार ये पैसा देगी आपको, राइट? सरकार अपराधी को देगी। यदि हमसे आप ये प्रोटोकॉल नहीं करेंगे तो हम आपके आदमी को घुसने ही नहीं देंगे अपने स्पेस में। तो आप मुझे बताइए, बाय नॉट हैविंग द प्रॉपर एक्शन इज द रीजन फॉर दिस एक्शन। अब आप जहां आप लुटपिट जा रहे हैं, पुलिस तो उसको रजिस्टर नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं कि मैसेज पे एफआईआर दर्ज होगी और सभी केस ट्राई होकर 3 दिन से 30 दिन तक। डू यू नो क्राइम फ्री भारत का इंजन क्या कह रहा है? इट इज सेइंग कि कोई कोर्ट नहीं जाएगा। हमारे क्राइम फ्री भारत के तहत जो ट्रायल होंगे, दे वेर थ्रो द क्राइम फ्री भारत डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से होंगे, और 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में जो है ना आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना ढीला ढाला नहीं चलेगा, लाखों प्रोसीडिंग एक साथ चलेंगी। तो कोई भी केस जो है ना बियॉन्ड 30 दिन नहीं जाएगा। यदि बियॉन्ड 30 दिन चला गया तो जज नहीं रहेगा। इसमें इतनी कम मेहनत है डॉक्टर पांडे, जानते हो कितनी मेहनत करना है? जानते कितनी मेहनत कम करना है? हम गवर्नमेंट से क्यों एक्सेप्ट कराएंगे? हम गवर्नमेंट खुद ही क्यों नहीं बन जाएंगे? हमारा क्राइम फ्री भारत मॉडल कह रहा है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, अपने नेटवर्क के 10 लोगों को जोड़ो और उनको जो है ना शपथ कराओ, और वो आगे 10 को जोड़े। ये चैन नहीं टूटना चाहिए। मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 9 दिन में। लेकिन उसकी उसकी एक गारंटी लेना पड़ेगी कि हम में से हर कोई जो है चैन नहीं टूटने देगा। और यदि हमारी चैन टूट भी रही है ना, तो हम एडिशनल लोगों को जो है ना जोड़ते जाएं, ये इंश्योर करें कि हमने जो 10 को जोड़ा वो आगे चैन नहीं टूटना चाहिए। तो यदि मान लो हमने 10 को जोड़ा और मैंने चोट जो है ना वो कर दी, तो हमने अगले दिन 10 को और जोड़ा। हम कम से कम 10 हमारी तरफ से ऐसे व्यक्ति जोड़ना चाहिए जो कि आगे 10 की चैन को नहीं रुकने देंगे। इस मॉडल को थोड़ा समझाऊं मैं डॉक्टर विजय पांडे आपको? बिल्कुल बात करिए, लेकिन हम चलिए बिल्कुल हम आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
हम आपसे तब तक एक बात ये कहेंगे कि हम आपको एसएमएस से एक लिंक भेज रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की, राइट? उसको आप डाउनलोड करके जुड़ जाइए और आज ही अपने परिवार के लोगों को तो आज ही जोड़ लीजिए, ठीक है ना? और उससे जो है हम बहुत जल्दी सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनेताओं को पराजित करते हो, क्योंकि आज की राक्षसी व्यवस्था, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक राक्षस हुआ करता था जिसकी जान एक तोते में होती थी, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू द राक्षस जब तक कि आप उस तोते तक ना पहुंच पाए, ठीक है ना? तो आज की राक्षसी व्यवस्था की जान जो है एक तोते में है जिसका नाम राजनेता है। यदि हम राजनेता को पराजित नहीं करेंगे तो आज की राक्षसी व्यवस्था को आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमने जो इस मॉडल को बनाया है, इसमें चंद्रगुप्त पैदा होंगे, राजनेता पैदा नहीं होंगे। और जो चंद्रगुप्त हैं वो राजनीति नहीं करेंगे, राष्ट्रनीति करेंगे। और राष्ट्र राष्ट्र उनके दिमाग में सर्वोपरि होगा। और ये जो चंद्रगुप्त होंगे, जानते हैं कौन है वो? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे, लोगों की जोड़ने की, उसको चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उसी को टिकट मिलेगा। और जो ये सदस्य जुड़ रहे हैं, ये थाली बजाकर दीपक जला के अपने अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त के नाम से जो है रोज जो है रोज जो है ना शपथ लेंगे कि मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। तो इतनी पावरफुल व्यवस्था है कि मतदान के पहले 3-3 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो पांडे जी, पूरी शक्ति के साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं आप? क्या क्या आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? और इस परिवर्तित भारत के लिए हम, यदि हमारे जैसे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एनर्जी के साथ जुड़ जाएं, और आज चूंकि संस्थान में है तो वहां पर भी हमारे टॉक करिए, बच्चों को जोड़ेंगे, आपके शिक्षकों को जोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा प्रयास करके वहां पे ढेर सारी यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो वहां पे भी जाके जो है ना आप हमारे जो है ना वीडियो बेस्ड टॉक करा दीजिए, फिजिकली भी टॉक करने हम वहां पहुंच जाएंगे। और यदि हमने लोगों को, और इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 2 विधाएं बनाई गई हैं जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट से लेके गांव तक पहुंचना है। तो यदि हम ये 2 काम कर दिए, संगठन को खड़ा करने का और संगोष्ठी लेके लोगों को जोड़ने का, मैं डॉक्टर विजय पांडे आपको आश्वस्त करता हूं, मेरी गारंटी है कि सभी पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। और केवल हारेंगे नहीं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ जो है इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं पर। और अब अपना जुड़ाव हो गया है, तो आप और चिंतन करके बताइए कि कैसे आप इस अभियान को जमीन में उतारने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि जब तक हम सब लोग आपस में जुड़ के इस संगठन को खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक इस देश को बिना इन राजनेताओं को पराजित किए हुए कुछ भी करना संभव नहीं है। ये मोटी खाल के लोग हैं। देखिए, जंतर मंतर पे जो है ना बेटियां बैठी हुई थी, उनमें डंडे मार के उनको भगाया। आज उन बेटियों ने जो है ना अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। अब बताइए हम कितनी मोटी खाल के लोग हैं। इतने सारे अपराधों का अपराधी, पहले तो जो है ना उसे उसका जो है ना बच्चों की जो है ना पहलवान टीम का मुखिया नहीं होना चाहिए था, अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था। और जब ये इतना कांड सामने आ गया तो तत्काल उसे जो है ना अरेस्ट करके गिरफ्तार करना चाहिए था। यदि हम अपने राजनीतिक हितों और इन सब चीजों को करेंगे तो ऐसे राजनीतिक हितों को जो है ना होने पैदा ही मत होने दीजिए। लिहाजा इन राजनेताओं को पराजित करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर विजय पांडे, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए हैं? तो चलिए जो है ना, बस हम लोगों को जोड़ने के उसमें लग जाए, और हम आपको अभी एसएमएस से लिंक भेज रहे हैं, आप जुड़िए। और हम जो है कल आपकी सुविधा से वीडियो कॉल करेंगे, लाइव बात करेंगे। देखो, इसमें किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। जो 21 लक्ष्य हैं क्राइम फ्री भारत के, वो हर व्यक्ति के होना चाहिए, और वो इतने स्मार्टली डिजाइन किए गए हैं कि किसी भी कंडक्ट रूल का कोई वायलेशन नहीं है। तो थ्योरेटिकली हर शासकीय अधिकारी जुड़ सकता है, और उसको तो इतने फायदे मिलने वाले हैं शासकीय अधिकारी को कि
उसकी आत्मा साफ हो जाएगी, वो पब्लिक के साथ न्याय कर पाएगा, देश समृद्ध हो पाएगा। तो जो अभी वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है, भ्रष्टाचार करने के लिए विवश है, भ्रष्टाचारियों की व्यवस्था में जो है ना, आप ये बताओ, ये राजनेता कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं बिना ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट के? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वही बात है कि यदि जो है ये घटियापन करने का जो है ना की जरूरत ना पड़े, और आपकी समृद्धि आज की तुलना में 5 गुना और 10 गुना बढ़ जाए, तो फिर आप एक अच्छा अच्छा सुकून का जिंदगी जिएंगे कि नहीं जिएंगे? और हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की पूजा करेगा कि साहब ये तो हमारी जिंदगी को अच्छा ही बना के रखे हुए है। अभी हर कोई गाली दे रहा है कि हमारी जिंदगी इनके कारण खराब है। तो हमको पूजा भी मिलेगी और हमको आत्मसम्मान भी मिलेगा, हमें घटिया काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल है। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अबाउट कम्युनिटी इस ऐप में पढ़िए, और यदि आप जो है एडम पोस्ट में खोजेंगे तो इसके सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोडेड है। और एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसे आप सर्च करिए, उसमें डिफरेंट मॉडल्स कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, इसके सैकड़ों इंटरव्यूज हैं, जिसमें हम छात्रों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। आपको आनंद आ जाएगा। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की थी, उनका भी सब जो है ना रिकॉर्डिंग इसमें है, व्हेन आई एम ब्रीफिंग द टीम ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आपके यहाँ पर भी हमने लीडरशिप वाला जो है भाषण भाषण दिया है। यदि आप खोजेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल जाएगा वो सब। चलिए, तो पांडे जी, इट्स ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।